Students, in previous class we have discussed rate equation or rate law. For example, reactant R is converted into product P. For this reaction, rate law is R is equal to rate constant and concentration of R reactant. And for zero order we have to write for zero order, so power क्या हो गई? Zero. This is called rate law. We have discussed it in previous class. If this reaction is of zero order, then we can write its rate law like this. R यानी rate will be equal to K concentration, square bracket is concentration of reactant and order ज़ीरो है, सो पावर क्या हो जाएगी? ज़ीरो. दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. टुडे we will convert this differential rate equation into integrated rate equation. Okay, so first we will discuss integrated rate equation for zero order, then for first order. In our syllabus, only zero order and first order integrated rate equations are essential. So, before starting, students, if experiment start, then that time we will take it as zero. At time 0 reaction will start. ठीक है, so t is equal to 0 means starting of the reaction. At this time concentration of reactant is represented as initial concentration or R naught. What is R naught? Initial concentration. Initial concentration means at time 0, means at the time of starting of the reaction. Okay, so concentration of reactant is R naught and concentration of product starting time पे product का concentration क्या था? ज़ीरो. product बना ही नहीं था. Suppose after time t we again measure the concentration and after time t concentration of reactant क्या हो गया? R and product का भी कुछ concentration उस समय तक हो चुका होगा. ठीक है, सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन, एंड दिस इज फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम टी. सपोज 10 मिनट्स बाद हमने देखा या 20 मिनट्स बाद देखा, तो वो हम क्या बोलेंगे उसे? फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम टी. ओके, नाउ दिस इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर. ओके, नाउ रेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज change in concentration upon change in time. This is called instantaneous rate. We have discussed it. कैसे हम लोगों ने वहाँ पे किया था? रिएक्टेंट है तो माइनस साइन, चेंज के लिए ये लेते थे, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम ये लिया था ना. दिस इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड दिस स्मॉल चेंज के लिए हम क्या ले रहे थे? डी. सो दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. So students, rate is minus dr by dt and power is 0. So this value will be equal to 1. किसी की भी पावर 0 होती है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है? 1. तो k into 1 that is k. तो ये इक्वेशन हम लोगों ने इस फॉर्म में चेंज कर ली है. Now rearrange it. So dr will be equal to k dt and माइनस साइन इधर ले आए हैं. So dr will be equal to ये dt इधर आ गया है और क्या हो गया है? माइनस k dt. Integrate this equation. Both the side we will integrate it. After integration, this equation will come. R concentration of reactant यानी ये R क्या था? फाइनल concentration is equal to minus KT plus C. इंटीग्रेशन के बाद हमारी इक्वेशन ये आ गई है. R is equal to minus KT plus C. C is the integration constant. ठीक है, C is the integration
कांस्टेंट। क्लियर बच्चों? तो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो तो इंटीग्रेशन समझ के खुद कर सकते हैं। बायो वाले स्टूडेंट्स उन्हें ये इक्वेशन लर्न करनी होगी कि आफ्टर इंटीग्रेटिंग दिस क्या होगा और इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा। ठीक है, c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c। सो एट टाइम 0, अगर हम यहाँ पर c को कैलकुलेट करने के लिए टाइम 0 ले लेते हैं, एट टाइम t सपोज 0 है, सो t एट t0 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या था, c हियर एट टाइम t कंसंट्रेशन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, r से, फाइनल कंसंट्रेशन। एट टाइम 0 t0 r किससे कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिएक्टेंट का, r नॉट से। सो एट टाइम 0 concentration of reactant will be represented by R naught. Okay, now solve it. So R naught will be equal to minus k into 0 0 क्या c. So c की value क्या आई, R naught. Okay, now put this value in our equation. जो हमारी मेन इक्वेशन है, सॉरी ये, उसमें हम c की वैल्यू आफ्टर इंटीग्रेशन दिस इक्वेशन कम ना, तो पुट दिस वैल्यू in this equation. Now substituting the value of c in the above equation, so equation ये r minus kt plus c की वैल्यू क्या आई, r naught. Okay, so this is our integrated rate equation for zero order. What is r? R is final concentration of reactant at time t. R naught is इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, टी टाइम गिवन इन द क्वेश्चन एंड के इज रेट कांस्टेंट. Okay, now rearrange this equation. If we will rearrange this equation, we get R naught minus R and KT यहाँ आ गया, then KT will be equal to R naught minus R. We can also write it as K is equal to R naught minus R upon T. This is our final integrated rate equation which we can use in our numericals. Clear? Once again, students, you have to note down it in your notebook. Okay, so this is our integrated rate equation. Now which type of question will arise? Suppose in question you have to calculate k or t or r or r naught. Other only 1 2 3 4 out of the 4, 3 values are given in the question and 1 you have to calculate. Generally k और t calculate करने को आता है. ठीक है. Now one example of a question. If a zero order reaction, listen the question clearly. If a zero order reaction is 80% completed in 20 minutes, calculate rate constant. ठीक है बच्चों, फिर से एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है जो 80% कंप्लीट हो जाती है 20 मिनट्स में, तो आपको के कैलकुलेट करना है. तो ज़ीरो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से कितना इजीली हम कैलकुलेट कर लेंगे. देखिए टी 20 मिनट्स, अगर आप 20 मिनट्स में रख रहे हैं तो इसकी यूनिट मिनट में ही आएगी, है ना. अगर आप सेकेंड में रख सकते हैं तो यहाँ यूनिट में सेकेंड रखेंगे. हम लोग यूनिट डिस्कस कर चुके हैं ना. आर नॉट और आर क्या दिया हुआ है, 80% कंप्लीटेड, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था 100 और उसमें से 80 कंप्लीट हो गई, यानी 80 रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं. अगर रिएक्टेंट 100 था तो उसमें से 80 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो बचा कितना 20 ना. सो दिस इज 100, दिस इज 20 एंड टाइम गिवन इन द क्वेश्चन यू हैव टू पुट इट. क्लियर बच्चों, ये समझ लीजिए. फाइनल कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट का बचा हुआ कंसंट्रेशन जो टाइम टी के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट होने के बाद जो रिएक्टेंट बचा हुआ है
उसे हम यहाँ पर रखेंगे। तो 80% तो कंप्लीट हो गई है, यानी 100 अगर इनिशियल कंसंट्रेशन है, चूँकि परसेंट में दिया हुआ है ना, तो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 100 है उसमें से 80 तो प्रोडक्ट में बदल गया है। कंप्लीशन का मतलब ये है, तो बचा हुआ कितना है 20। क्लियर? देन वी कैन कैलकुलेट के। नाउ वी विल डिस्कस ग्राफ for zero order. One graph for zero order, it's very important. Students, see this equation once again. इंटीग्रेशन के बाद जो हमारी इक्वेशन आई थी वो ये, कंपेयर दिस इक्वेशन विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारी इक्वेशन आई थी ना इंटीग्रेशन के बाद फाइनल। इसी को हमने रीअरेंज कर लिया है, ओके है ना। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। यानी अब हम अगर r को y एक्सिस पर, t को x एक्सिस पर लें तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका m क्या होता है, स्लोप, जिसका स्लोप ये है और स्लोप कैसा है, नेगेटिव, और इंटरसेप्ट c ये किसके बराबर है, r नॉट इनिशियल। ऐसा ग्राफ ड्रॉ करते हैं अभी। तो आप देखिए ग्राफ में हमें y क्या लेना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ले लिया है y एक्सिस पर, x एक्सिस पर क्या लेना है, t। हमारी इक्वेशन ये थी ना, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस r नॉट। तो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो x क्या है हमारा, t, टाइम। तो अगर हम टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और ये टाइम है, ग्राफ खींचे तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, और उस स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेप्ट है ये किसके बराबर होगा, r नॉट। अगर आपको क्वेश्चन में इंटरसेप्ट दिया है तो दैट विल बी r नॉट। और ये जो m है दैट इज स्लोप, वो क्या हो गया, तो k इज इक्वल टू माइनस स्लोप। k किसके बराबर हो गया, स्लोप के, तो k विल बी इक्वल टू माइनस स्लोप। सो वी कैन कैलकुलेट k। ओके, in the exam this graph questions are asked just like graph is given in the paper and you have to find the order of the reaction. इस ग्राफ को देख के आपको ऑर्डर पता करनी है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, k कैलकुलेट करना है इफ़ स्लोप इज़ गिवन, है ना। तो ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करेंगे, ग्राफ किस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में y की जगह पे कंसंट्रेशन ऑफ r होता है, रिएक्टेंट होता है, और x एक्सिस पर टाइम होता है ना। वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन याद करेंगे, देखेंगे तो वो ज़ीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में ऐसा होता है जहाँ पे y क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और x क्या था, टाइम, और स्ट्रेट लाइन ऐसे आ रही थी विद द नेगेटिव स्लोप। तो हमें पता है कि ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ज़ीरो ऑर्डर की है। सो दिस इज ग्राफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर। ओके, some more graphs we will discuss. Graphs are very important in this chapter. Okay, now we will discuss first order integrated rate equation. In comparison to zero order, first order integrated rate equation questions are more frequently asked. Okay, so in the same manner, integrated rate equation for first order, suppose our reactant is converted into product P. Okay, for this if it is first order we can write the rate equation, R rate is equal to K concentration of reactant, पावर क्या है 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है ना। क्लियर, ये हम लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना सीख चुके हैं। नाउ रेट, जैसे अभी हम लोगों ने किया, रेट इंस्टेंटेनियस रेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये चेंज के लिए है, ये कंसंट्रेशन के लिए है, और ये रिएक्टेंट के लिए। रिएक्टेंट है इसलिए नेगेटिव साइन, अपॉन चेंज इन टाइम। So this is instantaneous rate of reaction, K and concentration of reactant. ठीक है, now इसको rearrange कर लिया गया है, R यहाँ ले आए हैं and dt इधर चला गया है. So dr by r is equal to minus k dt. Integrate this equation and we get, or integrated this equation we get log
बेस ई है ये, लॉग बेस ई जिसे ln से लिख दिया है, तो लॉग बेस ई, ठीक है। तो नेचुरल लॉग जैसे बोलते हैं लॉग आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, ऐसा ही जीरो ऑर्डर में भी आया था, माइनस के टी प्लस सी आया था, तो लॉग आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, ये हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गई। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। नाउ सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वी विल ट्राई टू कैलकुलेट सॉल्व C is integration constant, just like we will discuss it, just like we have discussed in zero order reaction. Okay, so how can we calculate it at time 0? if time हम यहाँ पे क्या ले लें, 0 ले लें, है ना, तो टाइम 0 ले लेते हैं, माइनस के प्लस सी। आर किसके बराबर होगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कंसंट्रेशन ऑफ आर इनिशियली, टाइम 0 मतलब इनिशियली कितना लिया गया है, आर नॉट। टाइम 0 मतलब इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम लोगों ने क्या लिया है, आर नॉट, है ना, एट टाइम। ये चीज़ आप देख लीजिए फिर से, यहाँ पे हम लोगों ने एट टाइम 0 कंसंट्रेशन आर नॉट लिया है, और एट टाइम टी कंसंट्रेशन को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम यहाँ पे टी 0 इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, और टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट हो गया है ना। अब ये टर्म 0 हो गया और इधर क्या बचा, सी एंड लॉग आर नॉट, ठीक है। तो सी की वैल्यू आ गई लॉग आर नॉट। सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ सी इन दिस फर्स्ट इक्वेशन, इन द इक्वेशन फर्स्ट सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। ओके, देन ln सब्सटीट्यूट करते हैं, ln आर माइनस के टी प्लस सी इज व्हाट, लॉग आर नॉट, सी की वैल्यू लॉग आर नॉट। ओके, नाउ रीअरेंज करेंगे, सो वी कैन राइट इट एज के टी, इधर आया, इज इक्वल टू लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर, के टी इज इक्वल टू लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर। अब लॉग में स्टूडेंट्स वी नो दैट लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू होता है लॉग ए अपॉन बी, है ना। लॉग में ये रूल होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी विल बी रिटन एज लॉग ए अपॉन बी। फॉर एग्जाम्पल लॉग 2 माइनस लॉग 3 हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग 2 अपॉन 3, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस एंड we can rearrange, we can calculate k by this equation, k will be equal to t, इधर आ गया 1 upon t log r naught upon r, clear। in question अभी हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन 0 ऑर्डर की आर नॉट आर टी और के की हेल्प से आई थी, यहाँ पे भी आर नॉट आर टी और के ही है, बस इक्वेशन चेंज हो गई है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए लॉग आ गया। तो लॉग आर नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर इज फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टी टाइम, वो टाइम जब इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट से आर रह गया, एंड के इज रेट कॉन्स्टेंट। ओके, लॉग नेचुरल लॉग को हम लॉग बेस 10 में चेंज करेंगे, तो हम क्या ले आते हैं, अगर हम लॉग बेस 10 में, और इस पर ही आपको क्वेश्चन, क्योंकि वैल्यूज़ लॉग बेस 10 के अकॉर्डिंग ही दी होती हैं, तो अगर हम इसको चेंज करेंगे लॉग बेस 10 में, तो क्या करते हैं 2.303, यानी नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10, यहाँ पे 10 बार बार नहीं लिखा गया, ठीक है। ये लॉग बेस ई था और ये लॉग बेस 10, तो इसी इक्वेशन को हमें मैथड में यूज़ करना है, 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 आर नॉट अपॉन आर, ठीक है। न्यूमेरिकल्स इसके हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर ग्राफ। इसी इक्वेशन की अगर हम मॉडिफाइड, जो आपने जहाँ से स्टार्ट की थी, इस इक्वेशन को हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, है ना, तो y क्या है, ln r, ठीक है। तो y एक्सिस पर क्या ले लें, हमारी इक्वेशन क्या आई थी, इंटीग्रेशन के बाद हमारी इक्वेशन थी log r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस log r नॉट। तो y क्या है, यहाँ पर हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, तो y इज़ log r, और x एक्सिस पर टाइम है, एंड स्लोप क्या हुआ,
k इज इक्वल टू माइनस स्लोप, m स्लोप होता है ना, तो m की वैल्यू माइनस k के बराबर है, तो m इज इक्वल टू माइनस k इज इक्वल टू माइनस स्लोप। एंड इंटरसेप्ट c किसके बराबर है, लॉग r नॉट। बच्चों क्वेश्चन इसमें ऐसे आता है, अगर ये ग्राफ आपका बना हुआ है और आपको इस ग्राफ को देखकर ऑर्डर बताना है, या फिर ग्राफ दिया हुआ है एंड स्लोप इज गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट k, तो आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर में y एक्सिस पर log r होता है, जीरो ऑर्डर में y एक्सिस पर क्या था, केवल r, कंसंट्रेशन ऑफ r, है ना। टाइम तो यहाँ भी t x एक्सिस पे था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में log r होता है। तो हम इस ग्राफ को जैसे ही y एक्सिस देखेंगे ना, हमारी इक्वेशन ये आई थी, तो y एक्सिस पर log r देखेंगे और यहाँ पर t, तो और स्ट्रेट लाइन, तो हमें मालूम हो जाएगा दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। इफ़ log नेचुरल लॉग की जगह log बेस 10 के टर्म में दिया होगा, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, 2.303 log बेस 10 इज इक्वल टू माइनस KT प्लस 2.303 log r नॉट, है ना। अब पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दिया है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, और अब हमारा ये इक्वेशन क्या आई, log r इज इक्वल टू बेस 10 में माइनस KT अपॉन 2.303 प्लस log r नॉट। इसके थ्रू ग्राफ पढ़ लीजिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो बच्चों अगर यहाँ पे log बेस e ना दिया हो, log बेस 10 दिया हो, तो हमारा क्या सेम ग्राफ आएगा। अगर हम यहाँ पे log बेस 10 के टर्म में, टाइम t यही है, बट इस बार हमारा स्लोप क्या हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, दिस इज आवर स्लोप, तो वहाँ पे हमारा स्लोप माइनस k था, है ना, और स्लोप क्या था, माइनस k। और अब क्या हो जाएगा, अगर हम बेस 10, यहाँ पे इंटरसेप्ट भी क्या हो जाएगा, log r नॉट, यहाँ पे इंटरसेप्ट log r नॉट, और स्लोप क्या हो गया, स्लोप हमारा माइनस k अपॉन 2.303 इस बार, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर log बेस e है तो स्लोप k इज इक्वल टू माइनस स्लोप, और अगर log बेस 10 है तो हम इस फॉर्मूले से k निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ न्यूमेरिकल्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। आप देखेंगे बोर्ड एग्जाम बहुत न्यूमेरिकल्स इस इक्वेशन पर आते हैं, इस फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन के सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आए हैं, ठीक है।